Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Hamza Ghafoor, SS Physics, Divisional Public School and College, Sahiwan. Today, our topic is total internal reflection and dispersion of light from chapter number 9, Science 7th class. Major point of the lesson. First, objective of the lesson. Second, previous knowledge. Third, contents. Fourth, recapitulation. And then homework. Objective of the lessons. By the end of the lesson, student will be able to explain total internal reflections and examples. Second major point, define prism. And third point, which we discuss, describe the dispersion of light by the prism. Previous knowledge. We already discussed in this chapter two major phenomena which occur when light fall on any medium. Say first phenomena is reflection of light and second is refraction of light. What is a reflection of light? Reflection of light is a process of sending back the light ray which fall on the surface of an object. Reflection मीन हम कह सकते हैं कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़े उसी तरह ही वो क्या हो वापस बाउंस बैक हम कहते हैं वापस चल जाए बाउंस बैक वापस जाती है तो इट्स मीन कि रिफ्लेक्शन हो रही है। इसकी एग्जांपल रूटीन लाइफ में हम एक बहुत मेजर एग्जांपल दे सकते हैं कि जब भी हम अपने आप को मिरर में देखते हैं कॉम्ब करने के लिए तो उस टाइम जो हमें अपना इमेज नजर आता है वो रिफ्लेक्शन की ही वजह से नजर आ रहा होता है। इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज refraction of light. When light passes from one transparent medium to another, it changes its speed and direction or bends. This bending of light is called refraction. One thing is clear, bending. There is a major word is bending. Reflection में bending हो रही है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर होगी तब वो क्या होगा अपने पाथ से बेंड हो जाएगी थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी और फिर जब उस मीडियम में से पास करने के बाद देन उस मीडियम से निकलेगी देन वो थोड़ी सी बेंड होगी। तो ये जो बेंडिंग है यही जो फिनोमेना है इस फिनोमेना को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह रहे हैं। नेक्स्ट जो हम कंटेंट्स डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग लेसन में, फर्स्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, second condition of total internal reflection, third examples of total internal reflection, fourth prism, fifth dispersion of light and sixth why does white light dispersed, white light कैसे disperse होती है रूटीन लाइफ में। Now we start our major topic, total internal reflection. When light passes from glass or water to air, mean denser to their medium, it bends away from normal, but when angle of incidence is greater than the critical angle, the light ray reflect in the same denser medium. This phenomena is called total internal reflection. ये आपके सामने एक इमेज आया जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रॉपर उन्होंने एक्सप्लेन किया। इस इमेज से आपको उसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। आपको सबसे नीचे एक हमारे पास ग्लास नजर आ रहा है ये ब्लू कलर का, इसके नीचे एक लेफ्ट साइड पे व्हाइट स्पॉट नजर आ रहा है दैट इज अ लाइट सोर्स। रे ऑफ लाइट इज emitted from the light source, white, that is a light source. Ray of light is emitted from that light source and light ray passing through the denser medium. There is a glass is a denser medium. When light enter from glass to their medium air, जब ये रे ग्लास से एयर में एंटर होगी तो उस टाइम क्या होगा रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा।
ये रिफ्रैक्शन उसका फिनोमेना हुआ, तो उस टाइम हमारे पास दो तरह के एंगल बन रहे हैं, एक आई दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज रिप्रेजेंट बाय आर। ये जो एक डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास है नॉर्मल। जब देखें कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारे पास क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड रे आई, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस वो पहले वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से इससे ज्यादा था, और आप देखेंगे जो दूसरी रे का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी पहले वाली रे के साथ जो एंगल बन रहा था उससे ज्यादा है। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास कितना बन रहा है, 90। अब ये जो सी हमने जो लिखा है दैट शोज द क्रिटिकल एंगल, ये सी हमें क्या शो कर रहा है, क्रिटिकल एंगल। और व्हाट इज अ क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो सा है वो 90 डिग्री बन जाए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये आपको नजर आ रहा है, सी इज द क्रिटिकल एंगल। अब जैसे ही नेक्स्ट रे आएगी और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ये आप देख रहे हैं। अब इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सी से ज्यादा है, ये सी है, और ये जो आई एंगल बना रहा है ये सी से ज्यादा बना रहा है। तो उस टाइम क्या होगा कि जो रे है वो उस मीडियम सरफेस में जाने की बजाय, किसी दूसरे मीडियम में जाने की बजाय उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होना, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बहुत सारी चीजें अपनी वर्किंग कर रही होती हैं। उसकी एग्जांपल जो सी है कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि नीचे दी हुई है, हम अभी डिस्कस करते हैं। और उस एग्जांपल से पहले हम कंडीशंस देख लें। दो मेजर कंडीशंस हैं और उस कंडीशन के होते हुए ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन, लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में कौन कौन सा मीडियम है, वाटर और ग्लास, टू द रेयर मीडियम, रेयर मीडियम हमारे पास क्या है, एयर। अब जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम इंटर होगी तब ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकती है। सेकंड मेजर पॉइंट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी हमने डिस्कस भी किया पीछे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑल द रेज, जितनी भी रेज हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बना रही हैं, मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। वो उनका एंगल जो सा है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो ऑफ दैट डेंसर मीडियम, जो कि हमने इधर लिखा एंगल ऑफ आई ग्रेटर देन एंगल ऑफ सी। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि दो कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, के लाइट लास्ट में डेंसर से किधर जाए, रेयर मीडियम में, गुड। और सेकंड जो सा है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो सा है वो हमेशा ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, तब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। हम नेक्स्ट इसकी हम एग्जांपल्स पे आते हैं, एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें मैंने आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, द अंडर वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ द टर्टल्स इन द रिजल्ट ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपके सामने एक टर्टल्स है जो कि पानी के अंदर तैर रहा है और इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से इसका जो इमेज है वो हमें पानी की सरफेस पे नजर आ रहा है, वाटर सरफेस पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ माइरेज। माइरेज क्या है, जब हम गर्मियों में, आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि जब हम रोड पे जा रहे हो तो रोड पे देखें तो दूर हम देखते हैं कि हमें पानी नजर आ रहा होता है, रोड पे हम जा रहे हो तो हमें पानी नजर आ रहा होता है। जैसे हम उस जगह पे पहुंचते तो वहाँ पानी होता ही नहीं, वाटर होता ही नहीं। वो जो भी था, जो इमेज आपको नजर वाटर नजर आ रहा था, बेसिकली वो सारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो रहा था। तो उसको हम कहते हैं माइरेज, फॉर्मेशन ऑफ माइरेज। सेकंड जो पॉइंट है दैट इज अ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होती है। पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं चीजों को देखने के लिए जो हमसे, जिनको हम डायरेक्ट नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम उसमें बैठे हो सबमरीन में, तो सबमरीन से बाहर देखने के लिए कि सी लेवल पे क्या उधर की
सतह पे सरफेस पे क्या हो रहा है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम पेरिस्कोप यूज करते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर जोन सा वो हो जाएगा। अच्छा, बाइनोक्यूलर नेक्स्ट उसकी एक है एग्जांपल। बाइनोक्यूलर में भी यही प्रिंसिपल यूज होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब उसमें क्या करते हैं हम, दूर बहुत दूर वाली चीज जो सी होती है ना, इमेज को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब वर्सटाइल टूल है, ऑल इन लार्ज इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर इसका जो यूज है वो जो दूरबीन वगैरह आप लोगों ने देखी होगी, माइक्रोस्कोप, उसमें इसको यूज कर रहे होते हैं बाइनोक्यूलर। अच्छा, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है फिश आई व्यू। फिश आई व्यू, जो फिश का जो आई का व्यू होता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम कर रहा होता है। एक लास्ट एग्जांपल, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रे इन द ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको थोड़ा बताता चलूं। आजकल जो हमारे घरों में जो नेट आते हैं या आपके जो घरों में पीटीसीएल के फोन लगे हुए हैं, वो सारी आजकल ऑप्टिकल फाइबर ही वायर्स यूज कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि उसमें जो सिग्नल होते हैं बड़ी स्पीड से मूव करते हैं, और वो सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो लाइट की फॉर्म में हमारे सिग्नल जा रहे होते हैं, जिससे हमारी नेट की स्पीड बेहतर होती है। और वो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो उससे नेट की स्पीड तो बेहतर होती है, लेकिन आपकी वॉइस क्वालिटी भी बहुत बेहतर होती है। तो आजकल वो पुरानी तारें खत्म कर रहे हैं और ऑप्टिकल फाइबर जो सी है वही घरों में यूज करवा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब एक जो हमारा नेचर, इसके बाद एक और टॉपिक है, उसको पढ़ने से पहले हमें प्रिज्म का पता होना चाहिए। व्हाट इज अ प्रिज्म? A prism is a block of glass with three rectangular and two triangular surface. प्रिज्म एक ऐसा हमारे पास ब्लॉक है जिसमें ग्लास विद थ्री रेक्टेंगुलर, उसमें तीन रेक्टेंगुलर्स आपको नजर आएंगे और दो ट्राइएंगुलर सरफेस नजर आएंगी। थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस और टू ट्राइएंगुलर सरफेस। आपको रेक्टेंगुलर सरफेस का भी पता है बच्चों, और आपको ट्राइएंगुलर सरफेस का भी पता है। अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो ये वाली साइड, ये नीचे वाली जो साइड है, और एक ये जो हमारी जो तिरछी साइड है, जिसको हम, आपको पता है कि हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम बेस भी कह सकते हैं अगर एक ट्राइएंगल बन रही हो, और इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ये जो तीन साइड्स हैं, अगर हम इसको फ्रंट से देखें तो ये हमारे पास जो सी है रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, और अगर हम दूर से देख रहे हैं इस टाइम तो हमें ये ट्राइएंगुलर, इसकी दो ट्राइएंगुलर सरफेस भी होंगी। अब ट्राइएंगुलर सरफेस क्या है? राइट एंगल प्रिज्म हैज 190 एंड 245 डिग्रीज। 90 इसमें देखें कि यहाँ जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री, और ये जो अपर कॉर्नर है दिस वन एंड दिस वन, इन टू कॉर्नर्स पे एंगल 45 बनेगा। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास इज अबाउट 42 डिग्री। ये डिग्री का साइन है, ये जीरो मत समझिएगा। तो व्हेन द लाइट एंटर फ्रॉम प्रिज्म इट्स विल अंडरगो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो आपसे पूछेगा क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास, ग्लास का क्रिटिकल एंगल क्या है, तो आप कहेंगे 42 डिग्री जोन सा है वो हमारे पास ग्लास का क्रिटिकल एंगल है। तो ये हमारे पास एक प्रिज्म था जिसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। बाकी आपको इंशाल्लाह ये जब हम 9th क्लास में जाएंगे तो आपको फिजिक्स के अंदर इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में आप पढ़ेंगे। अच्छा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन का वर्ड निकला डिस्पर्स से। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्स होना, लाइट का बिखरना। Here the definition for the dispersion of light, the splitting of white light. Splitting mean टूटना, white light into its components. White light का उसके components में टूटना। वो component colors is called dispersion of light. बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, एक दफा फिर मैं रिपीट करता चलूं। The splitting of white light into its component colors is called dispersion of light. Here मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए नीचे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, दैट इज अ प्रिज्म, जिसके भी हमने बात के ऊपर। When white light enter in the prism, then light is dispersed into different colors. Here, these colors start from the violet and end at the red color. We say that here color
most bended color ray is violet and less bend is red. This sign is first color is violet, second color indigo, third blue, green, yellow, orange and रेड. ये हमारे पास कुछ कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, देखें आपके सामने. और जो वाइल्ड लाइट जो प्रिज्म में से गुजरेगी तो इन 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी. और इसी फिनोमेना को हम डिस्पर्शन कहते हैं. जरूरी नहीं है कि डिस्पर्शन जो सी हो वो सिर्फ प्रिज्म की वजह से ही हो. डिस्पर्शन हमारे पास प्रिज्म के साथ साथ कोई और भी मीडियम में से हो सकती है डिस्पर्शन. आप देखें कि इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि जब लाइट जो हमें स्काई है हमें ब्लू नजर आता है, तो वो ब्लू हमें क्यों नजर आता है? रात के टाइम ब्लैक ही है बेसिकली. कलर स्काई का कलर जो ब्लू नहीं है वो है ब्लैक. अब वो अगर हमें ब्लू नजर आता है तो वो जब लाइट जब एटमॉस्फेयर में से गुजर के जमीन तक आ रही होती है तो लाइट उन छोटे छोटे पार्टिकल्स पे जो एयर में मौजूद होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और दूसरी चीजों से टकराती है और टकराने के बाद डिस्पर्स होती है. इस वजह से वो कलर आपको जो है ब्लू नजर आ रहा होता है इन द डे. उसमें ओजोन लेयर्स का भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं. खैर वो आपको फिर इंशाल्लाह कभी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम आते हैं व्हाई डज द व्हाइट लाइट गेट डिस्पर्स. अब ये व्हाइट लाइट कैसे डिस्पर्स होती है, जो हमारा मेजर टॉपिक अभी हमने पढ़ा भी है. व्हेन द बीम ऑफ लाइट इंटर अ प्रिज्म, जब प्रिज्म इंटर होगी, ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट एट डिफरेंट एंगल्स. जितने भी हमारे पास कलर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. अभी हमने रिफ्लेक्शन की बात शुरू में की थी. इंटर हुआ और साथ भी क्या होगी, बेंड. रिफ्लेक्शन मतलब बेंड होंगे. अगर हम पीछे की तरफ हम जाएं इस टॉपिक से तो ये देखें, यहाँ से अगर हम काउंट करें कि ये फर्स्ट एंगल कौन सा है, वो ये वायलेट के साथ जो एंगल बन रहा है और इसके बाद इंडिगो के साथ फिर ब्लू के साथ सबसे कम एंगल जो बना रहा है वो रेड बना रहा है और सबसे ज्यादा जो एंगल बना रहा है ये सबसे ज्यादा जो डाइफ्रैक्शन हो रही है, डाइफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हो रही है वो हमारे पास वायलेट वायलेट कलर के साथ हो रही है. दोबारा हम टॉपिक उसी पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इज कॉज ऑफ द वाइट लाइट टू स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट्स. वाइट लाइट उसके कंपोनेंट्स में क्या होती है, स्प्लिट होती है. अब ये देखें वही पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया. रेड लाइट्स बेंड्स द लीस्ट, रेड लाइट सबसे कम बेंड होगी. एंड वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट एंड रिफ्लेक्टेड बाय द लार्जेस्ट एंगल, और वायलेट लाइट जो सबसे ज्यादा एंगल बनाएगी. इन दिस वे द वाइट लाइट डिस्पर्स इनटू इट्स कंपोनेंट. इस तरह क्या होता है, जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म में से गुजरेगी वो अपने इस कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये दोबारा एक इमेज देखें, इसमें व्हाइट लाइट passes through a prism, first red and last is violet. आप यहाँ से देखें, यहाँ से कि ये वायलेट का एंगल बहुत ज्यादा है, ये रिफ्लेक्शन, और ये हमारे पास रेड, इसमें रिफ्लेक्शन बहुत, बेंडिंग जो सी बहुत कम है. वायलेट की बेंडिंग बहुत ज्यादा है, रेड की बेंडिंग बहुत कम है. यही पेज दोबारा हम इस पेज पे ये पेज देखें, इस पे आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है. एग्जांपल हमारे पास क्या है, व्हाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म में एंटर होती है तो आप देखें कि जो वायलेट है उसकी बेंडिंग ज्यादा है, रेड की बेंडिंग कम है. वायलेट की बेंडिंग ज्यादा है मतलब ज्यादा एंगल बना रही है ये, और रेड जोन सी है उसकी बेंडिंग कम है, वो कम एंगल बना रही है. ठीक है जी. ये हमारे पास व्हाइट लाइट का, व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कैसे होती है, सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की. इसमें हम एक दफा फिर रीकैप करेंगे इस लेसन को. Recapitulation of the lesson, we have learned about the total internal reflection and dispersion of light. मेजर जो टॉपिक थे हमारे पास total internal reflection था और dispersion of light था. Second point, basically total internal reflection have wide application uses in prism for underwater objects and optical instrument. अभी मैंने आपको बताया सबमरीन में हम यूज कर रहे होते हैं, वहाँ सबमरीन से बाहर देखने के लिए, और अगर हम टैंक में हो टैंक से बाहर देखने के लिए, फौजी जो आर्मी में हमारी होती है यूज कर रही होती है बाहर देखने के लिए, तो वहाँ वो पेरिस्कोप यूज करते हैं. और आपको पता है पेरिस्कोप के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो रही होती है. और भी बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है. उसके एग्जांपल्स ऊपर हमने पढ़ लिए. उस एग्जांपल्स को आप दोबारा रिकैप करें, माइंड में लेके आए. उसमें हमारे पास बाइनोक्यूलर था, उसमें हमारे पास पेरिस्कोप था, उसमें हमारे पास फिश आई व्यू था.
तो और इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर थी और बहुत सारी चीजें जो थी वो हमने ऑलरेडी ऊपर एग्जांपल्स में देखी। लास्ट पॉइंट है इसका, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट्स कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वो दोबारा फिर डेफिनेशन आ गई ताकि आपके माइंड में हो जाए कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को व्हाइट लाइट डिस्पर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स is called dispersion of light. It's not difficult, it's very easy concept. Now, today our topic is complete. Now, last homework. Learn and write these questions on your notebooks. Define prisms. जो आपको आंसर दिए यही अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे और डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड लास्ट व्हाट्स डिस्पर्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, माइंड में रखिएगा। व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, व्हाई डज द व्हाइट लाइट गेट डिस्पर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपने आगे 9th 10th में भी पढ़ना है, फिजिक्स में और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू बच्चों, बहुत शुक्रिया आपका, आपने लेसन सुना। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन जो से हैं वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।